کیسے ہیں؟ بس ٹھیک ہی ہوں. کھانا کھایا آپ نے؟ بھوک تو تب لگتی ہے جب دل پہ کوئی خواہش ہو. دل تو جیسے مر گئے اس کے ساتھ ہی. میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت مشکل وقت ہے، لیکن آپ کو ہمت کرنی ہوگی. کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح اچانک ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جائے گی. کینسر نے میرا سب کچھ چھین لیا. اب یہاں ہر چیز اس کی یاد دلاتی ہے. سوچ رہا ہوں سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور چلا جاؤں جہاں اس کی یاد بھی نہ آئے. اگر آپ کو لگتا ہے انکل ایسا کرنے سے آپ کے دل کو سکون ملے گا تو آپ ضرور جائیں، لیکن ایک بات کا یقین دلاتا ہوں آپ کو، تسنیم آنٹی ہمیشہ آپ کے ساتھ زندہ رہیں گی، آپ کے خیالوں میں، آپ کی یادوں میں. جانتا ہوں میں، وہ کبھی میری یادوں سے جا ہی نہیں سکتی. تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے ہمت کرنی ہوگی، خود کو سنبھالنا ہوگا. میرا بیٹا زین کیسا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے وہ. میں اور فبیہا بالکل اسے اپنے بچے کی طرح پال رہا ہوں. پوری کوشش کریں اسے ماں کی کمی محسوس نہ. تنہا نہیں ہے، فکر مت کریں انکل، ویسے ہی جیسے آپ تنہا نہیں. تم بہت اچھے ہو المیر. تسنیم ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ المیر داماد نہیں، ہمارا بیٹا ہے. بس آپ خوش رہیں، یہی میری دعا. چلو ذرا قبرستان تک چلیں، کچھ دیر تسنیم کے پاس بیٹھ جاؤں گا، سکون مل جائے گا. جی ابو، آپ نے بلایا مجھے؟ ہاں بیٹا، میں نے بلایا، بیٹھو. دیکھو بیٹا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امبر کے جانے کے بعد تم نے جس طرح گھر سنبھالا بہت اچھے سے، نہ صرف یہ بلکہ اپنی ساری ذمہ داریاں بڑی خوش اسلوبی سے انجام دی، جس کی جتنی بھی تعریف کروں اتنی کم ہے. لیکن اب یہ ہے کہ تم ایک ایسے سفر پہ جا رہی ہو جس پہ تم ماں بننے والی ہو. تو بہت سوچ سمجھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت تمہیں دماغی اور جسمانی طور پر آرام کی ضرورت ہے. گھر کی باقی ساری ذمہ داریاں جس کی بیس پر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فبیہا کو سونپ دینی چاہیے. فبیہا بھی ہماری بیٹی ہے، اس گھر کی بہو ہے بیٹا، اور مجھے پورا یقین ہے فبیہا تم اپنی ذمہ داری بالکل مہک کی طرح نبھاؤ گی. جی ابو. کوئی شکایت کا موقع نہیں دو گی، پوری دیانتداری کے ساتھ، اور کسی کو میں بالکل ویسے ہی خیال رکھوں گی جیسے مہک بھابھی رکھتی. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید اچھا ہی ہوا کہ انبر اس دنیا سے چلی گئی. جو شخص میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرے، اس کی عزت پامال کرے، وہ میرا بھائی نہیں ہو سکتا.
ये शख्स बहुत जालिम है। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें उसकी हालत का जरा भी अंदाजा है? इस सब के बावजूद भी तुम बाज नहीं आते, वरना तो ये दिन देखने से पहले वो जीते जी खुद ही मर जाती। उरे ओए, ये क्या हरकत है? हटो हटो यहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं, उसमें कसूर भाभी का नहीं, बल्कि सब कुछ उन्होंने खुद शुरू किया था। वो माँ बनने वाली हैं और तुम इन्हें धिका दे रही हो। कहाँ गई तुम्हारी तरबियत? महक ने एक बार फिर पूरे घर का माहौल खराब करके रख दिया है। जिस तरह वो हर वक्त फबीहा से लड़ती झगड़ती रहती थी, अब फबीहा ने भी वही रोश अपना ली है। उसी तरह एक दिन जब फबीहा और महक के दरमियान तलख कलामी जारी होगी तो गुस्से में आकर फबीहा महक को धक्का दे देगी। इतने में वहां आर्यन आ जाएगा और फबीहा पर बरस पड़ेगा कि तुमने महक को धक क्यों दिया। फिर वहां अलमीरो भी पहुंच जाएगा और देखते ही देखते दोनों भाई एक दूसरे का गरिबान पकड़कर लड़ने झगड़ने लगेंगे। ये सब मंजर देखकर आसिफ साहब को बेहद अफसोस होगा कि उनके बेटे आपस में इस तरह लड़ झगड़ रहे हैं। आसिफ साहब ये मंजर देखकर वहीं साकित खड़े रह जाते हैं। उनकी आंखों में शदीद मायूसी और दिल में टूटने का एहसास उन साफिन झलकने लगता है। वो दोनों बेटों को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर गुस्से में बंधे हुए आर्यान और अलमीर किसी की सुनने को तैयार नहीं होते। घर के दूसरे अफराद भी जमा हो जाते हैं। औरतें चीख चीख कर उन्हें अलग करने की कोशिश करती हैं, मगर तलखी इतनी बढ़ चुकी होती है कि बात हाथापाई से आगे निकल जाती है। फबीहा एक तरफ खड़ी कांप रही होती है, उसे अपने किए पर निदामत भी होती है और आर्यन के सख्त रवैये पर दुख भी, जबकि महक खामोशी से अपने पेट पर हाथ रखे खौफजदा नजरों से सब कुछ देख रही होती है। उसी लम्हे आसिफ साहब की आवाज गूंजती है जो इस पूरे हंगामे पर भारी पड़ती है। वो सख्त लहजे में दोनों बेटों को खबरदार करते हैं कि अगर यही रवैया रहा तो ये घर टूट जाएगा। उनकी आवाज में बाप का दुख और बेबसी शामिल होती है। वो कहते हैं कि इख्तिलाफात का हल तशद्दुद नहीं, मगर अफसोस कि उनके बेटे उस नहज तक आ पहुंचे हैं। इस दिन के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। रिश्तों में दरारें गहरी हो जाती हैं और हर शख्स के दिल में ये खौफ बैठ जाता है कि अगर हालात यूं नहीं रहे तो अंजाम बहुत खौफनाक होगा। आसिफ साहिब के लिए ये लम्हा किसी क़यामत से कम नहीं होता। वो कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ते हैं और दोनों बेटों के दरमियान खड़े होकर चीखते हैं कि बस करो, मगर उनकी आवाज़ में वो असर नहीं रहता जो कभी हुआ करता था। आर्यान गुस्से से लाल पीला होकर फबीहा पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने जान बोझ कर महक को धक्का दिया, जबकि अलमीर अपनी बीवी का दिफा करते हुए आर्यान को याद दिलाता है कि महक ने ही हमेशा फबीहा को ज़हनी अज़ियत दी है। दोनों भाइयों की ज़बान से निकलने वाले सख्त अल्फाज तीर की तरह एक दूसरे के दिलों में पियस्त हो रहे होते हैं और माजी की तमाम तलख यादें उस झगड़े को और भी भड़का देती हैं। फबीहा एक कोने में खड़ी रो रही होती है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उसे एहसास होता है कि एक लम्हे के गुस्से ने पूरे घर को आग में झोंक दिया है। वो बार बार सफाई देने की कोशिश करती है कि उसका मकसद महक को नुकसान पहुंचाना नहीं था, मगर उसकी आवाज़ शोर में दब अगले दिन की सुबह इस घर पर और भी ज्यादा भारी साबित होती है। फजर के बाद भी घर में वो रौनक नहीं लौटती जो कभी हुआ करती थी। हर चेहरे पर थकन, आंखों में सोयन और दिलों में बेशुमार सवाल होते हैं। आसिफ साहब नमाज के बाद देर तक जाए नमाज पर बैठे रहते हैं, हाथ दुआ के लिए उठते हैं, मगर अल्फाज लबों तक नहीं आ पाते। उन्हें बार बार पिछली रात का मंजर याद आता है जब उनके अपने बेटे एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। वो सोचते हैं कि अगर वो इस वक्त मजबूती से फैसला न करें तो ये आग मजीद फैल जाएगी और उसकी लपेट में पूरा खानदान आ जाएगा। दूसरी तरफ फबीहा रात भर सो नहीं पाती। उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश करता रहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो खुद को कोसती है कि अगर वो खामोश रहती, अगर वो बर्दाश्त कर लेती तो शायद बात यहाँ तक न पहुँचती। उसकी आंखों के सामने बार बार महक का खौफजदा चेहरा आता है और दिल मजीद घबरा जाता है। उसे इस बात का भी डर होता है कि कहीं सब लोग इसी को कसूरवार न ठहरा दें और अलमीर के दिल में भी उसके लिए बदगुमानी न पैदा हो जाए। वो दिल ही दिल में अल्लाह से माफ़ी मांगती है और ये दुआ करती है कि हालात किसी तरह संभल जाएं
महक की हालत भी अंदर से कुछ मुख्तलिफ नहीं होती। बेज़ाहिर वो खामोश और मजलूम बनी रहती है, मगर उसके दिल में फबीहा के लिए नाराज़गी और गुस्सा दोनों मौजूद होते हैं। वो बार बार यही सोचती है कि अगर उसे ज़रा सा भी ज़्यादा धक्का लग जाता तो क्या हो जाता। उसके जहन में अपने होने वाले बच्चे का ख्याल आते ही उसका खौफ बढ़ जाता है। वो खुद को कमज़ोर महसूस करती है और यही कमज़ोरी उसके रवैये में तलखी पैदा कर देती है। वो आर्यान से शिकायत करती है कि इस घर में अब वो महफूज नहीं रही और यही बात आर्यान के गुस्से को मज़ीद हुआ देती है। आर्यान इस सारी सूरत हाल को अपनी तौहीन समझता है। उसे लगता है कि उसकी बीवी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और वो किसी सूरत ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका गुस्सा सिर्फ फबीहा तक महदूद नहीं रहता, बल्कि वो अलमीर को भी जिम्मेदार ठहराने लगता है कि उसने अपनी बीवी को कभी काबू में नहीं रखा। दूसरी तरफ अलमीर के दिल में भी तलखी बढ़ती जा रही होती है। उसे लगता है कि उसके भाई ने बगैर सच जाने फबीहा को मुजरिम बना दिया और उसकी इज्जत पर हर्फ आया। दोनों भाइयों के दिलों में जमा होने वाली ये कदूरत अब खामोशी से नफरत में बदलने लगती है। चंद दिनों में ही पूरा घर दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ आर्यान और महक, दूसरी तरफ उलमीर और फबीहा। बात बात पर तंज, खामोश जुमले और सर्द रवैया मामूल बन जाता है। आसिफ साहब ये सब देखकर मजीद टूट जाते हैं। उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि अगर अब भी उन्होंने बीच बचाव न किया तो ये रिश्ते हमेशा के लिए बिखर जाएंगे। वो फैसला करते हैं कि एक दिन सबको बैठा कर साफ साफ बात की जाएगी, चाहे उसमें कितनी ही तलखी क्यों न निकल आए, क्योंकि अब खामोशी इस घर के लिए सबसे बड़ा जहर बन चुकी है। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब आसिफ साहब सबको ड्राइंग रूम में जमा करते हैं। इनका चेहरा थका हुआ मगर लहजा गैर मामूली तौर पर मजबूत होता है। वो सबसे पहले खामोशी तोड़ते हैं और कहते हैं कि ये घर ईंटों से नहीं बल्कि रिश्तों से बनता है, और जब रिश्ते ही टूटने लगें तो छतें खुद ब खुद करने लगती हैं। वे आर्यन की तरफ देखकर कहते हैं कि गुस्सा गैरत नहीं होता और न ही हर मसले का हल चीखो पुकार है। फिर अलमीर की तरफ मुतवज्जा होकर समझाते हैं कि खामोशी भी बाज़ औक़ात जुल्म के बराबर हो जाती है, क्योंकि उससे गलत वक्त गुजरने के साथ साथ इस घर में एक अजीब सी आजमाइश का दौर शुरू हो जाता है। बेज़ाहिर सब लोग मामूल के कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं, मगर दिलों के अंदर जो दरारें पड़ चुकी होती हैं वो हर लम्हा महसूस की जा सकती हैं। फबीहा अब हर कदम फूंक फूंक कर रखती है। उसके लहजे में वो बेफिक्री नहीं रहती जो पहले हुआ करती थी। वो चाहती है कि किसी तरह महक को यह यकीन दिलो उसके कि उसके दिल में कोई कीना नहीं, मगर हर बार बात करने से पहले ही उसे डर महसूस होने लगता है कि कहीं कोई नया तनाज़ा न खड़ा हो जाए। यही खौफ उसे खामोश रहने पर मजबूर कर देता है। महक भी अंदर ही अंदर एक किशमकश का शिकार रहती है। उसका दिल चाहता है कि वो फबीहा की मुआफ़ी को दिल से कबूल कर ले, मगर पिछले वाक़यात उसके जहन से निकलने का नाम नहीं लेते। हर बार जब वो अपने पीठ पर हाथ रखती है तो उसका खौफ ताज़ा हो जाता है। वो खुद को कमज़ोर और गैर महफूज समझने लगती है और यही एहसास उसे चिड़चिड़ा बना देता है। कभी कभी वो खुद भी नहीं जान पाती कि उसका गुस्सा फबीहा पर है या उन हालात पर जो उसे उस मोड़ तक ले आए हैं। आर्यान और अलमीर के दरमियान भी फासला दन बदन बढ़ता जाता है। दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, हुए भी अजनबी बन चुके होते हैं। कभी किसी बात पर नजरें मिल जाएं तो फौरन झुक जाती हैं, जैसे दोनों को डर हो कि आंखों में आंखें डालने से फिर कोई पुराना जख्म न हरा हो जाए। आर्यान अपने दिल में ये मानने को तैयार नहीं होता कि उसका गुस्सा हद से बढ़ गया था, जबकि अलमीर को ये एहसास सिटाता रहता है कि वो अपने भाई को खो चुका है। ये खामोशी दोनों के लिए सबसे बड़ी सज़ा बन जाती है। आसिफ साहिब ये सब देखकर मज़ीद फिक्रमंद हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि सिर्फ एक बैठक और चंद बातों से ज़ख्म नहीं भरते। रिश्तों को जोड़ने के लिए वक्त, बर्दाश्त और सबसे बढ़कर नीयत की ज़रूरत होती है। वो कभी फबीहा को अलग बिठाकर समझाते हैं, कभी महक से नरमी से बात करते हैं और कभी आर्यान और अलमयर को उनके बचपन के किस्से याद दिलाकर उनके दिल नरम करने की कोशिश करते हैं। उन्हें यकीन होता है कि अगर भाइयों के दिल मिल जाएं तो बाकी रिश्ते भी खुद ब खुद संभल सीखते हैं। उसी दौरान घर में एक नई बेचैनी जन्म लेने लगती है।
हर शख्स को लगता है कि कोई ना कोई बड़ा फैसला होने वाला है। फबीहा को डर होता है कि कहीं उसे उस घर से अलग न कर दिया जाए। महक के दिल में ये खौफ बैठ जाता है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो उसका मुस्तकबल क्या होगा। और आर्यान व अलमीर दोनों ये सोचने लगते हैं कि आया वो वाकई एक दूसरे के बगैर रह सकते हैं। ये सब खदशात मिलकर उस घर की फ़ज़ा को मज़ीद बोझल बिना देते हैं, जैसे तूफ़ान से पहले की खामोशी हो। यूं ये कहानी सिर्फ एक झगड़े की नहीं रहती, बल्कि सब्र, बर्दाश्त और रिश्तों के इम्तिहान में बदल जाती है। हर किरदार अपनी अपनी जगह आजमाइश में होता है और वक्त आहिस्ता आहिस्ता सब पर यह वाज़ेह करने लगता है कि या तो वह इना को छोड़कर रिश्तों को बचा लेंगे या फिर ये घर हमेशा के लिए टूट कर रह जाएगा। चंद ही दिनों बाद इस घर में एक नया मोड़ आता है जब महक की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। घबराहट के आलम में सब लोग दौड़ पड़ते हैं। आर्यान के हाथ कांपने लगते हैं और उसके दिल में हजारों खदशात एक साथ जाग उठते हैं। फबीहा यह मंजर देखकर साकत रह जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। उसे बार बार यही ख्याल सिताता है कि अगर महक या बच्चे को कुछ हो गया तो सारा इल्ज़ाम उसी पर आएगा। चाहे हकीकत कुछ महक की तबीयत संभलने के बाद घर में जैसे सब कुछ बदल तो जाता है, मगर मुकम्मल सुकून फिर भी नहीं आता। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अब महक को ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है, इसलिए आसिफ साहब सख्ती से सबको समझा देते हैं कि किसी भी किस्म की बहस या तलख बात अब उसके सामने नहीं होनी चाहिए। ये हुक्म सबके लिए एक खामोश वार्निंग बन जाता है। फबीहा खुद को कसूरवार समझते हुए हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगती है। वो सुबह सबसे पहले महक के कमरे में जाती है, उसके लिए दूध, दवाएं और नाश्ता लाती है। हालांकि दिल में खौफ भी होता है कि कहीं उसकी मौजूदगी ही महक को नागवार न गुजरे, मगर महक अब उसे रोकने के बजाय खामोशी से सब कुछ कबूल कर लेती है, जैसे उसके अंदर भी एक थिकन सी भर गई हो। आर्यान के रवैये में भी आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आने लगती है। अब उसकी आवाज़ में वो सख्ती नहीं रहती जो पहले हर बात पर झलक जाया करती थी। वो अक्सर तन्हाई में बैठकर सोचता है कि अगर उस दिन कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी माफ़ न कर पाता। इस एहसास के साथ उसके दिल में फबीहा के लिए नफ़रत की जगह एक महतात सा एहतराम पैदा होने लगता है। दूसरी तरफ अलमीर भी दिल में शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ने बड़ा नुकसान टाल दिया। उसे अब यह बात शिद्दत से महसूस होती है कि अगर वो शुरू से ही मामले को संजीदगी से संभालता तो शायद बात इस हद तक न पहुंचती। आसिफ साहब इन सब तब्दीलियों को खामोशी से देख रहे होते हैं। उनका दिल चाहता है कि वो सब को एक बार फिर पढ़ाकर बात करें, मगर वो जानते हैं कि जख्म अभी ताज़ा हैं, इसलिए वो वक्त को अपना काम करने देते हैं। कभी कभी वो तन्हाई में बैठकर अपनी मरहूम बीवी को याद करते हैं और सोचते हैं कि अगर वो आज जिंदा होती तो शायद उस घर की फ़ज़ा इतनी बोझल ना होती। ये ख्याल उन्हें अंदर से तोड़ देता है, मगर साथ ही उन्हें मजबूत भी बनाता है कि अब उन्हें ही उस घर को संभालना है। फबीहा और महक के दरमियान अब छोटी छोटी बातों पर नज़रें मिलने लगती हैं, कभी दवाओं के वक्त, कभी किसी दुआ के दौरान। इन नज़रों में अभी मुकम्मल अपनायत तो नहीं होती, मगर दुश्मनी भी नहीं रहती। एक दिन महक धीमी आवाज़ में फबीहा से पानी मांग लेती है और यही एक जमला फबीहा के दिल पर गहरा असर छोड़ जाता है। उसे महसूस होता है जैसे बरसों बाद कोई बोझ उसके दिल से हल्का हुआ हो। वो पानी पकड़ाते हुए नज़रें झुका लेती है, मगर आंखों में शुक्र के आंसू आ जाते हैं। यूं वक्त के साथ साथ इस घर में नफरत की जगह खामोश समझौते जन्म लेने लगते हैं। रिश्ते अभी कमज़ोर हैं, ज़रा सी ठोकर से टूट सकते हैं, मगर अब सब ये जान चुके हैं कि ज़द और अना की कीमत बहुत भारी होती है। हर कोई अपने अपने अंदाज में उस टूटे हुए घर को जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि सब ने यह सच देख लिया होता है कि अगर अब भी एक दूसरे का ख्याल न रखा गया तो शायद अगली बार अल्लाह भी इतनी मेहरबानी न करे। वक्त के साथ साथ इस घर में एक नया एहसास जन्म लेने लगता है, जो मुकम्मल सुलह तो नहीं, मगर टूट फूट के बाद जुड़ने की एक कमज़ोर सी कोशिश ज़रूर होता है। महक अब पहले की तरह चढ़चढ़ी नहीं रहती। बीमारी और कमज़ोरी ने उसके लहजे में नरमी पैदा कर दी होती है। वो अक्सर खामोशी से छत
को तकते हुए सोचती रहती है कि जिंदगी कितनी गैर यकीनी है। एक लम्हे की जद सब कुछ छीन सकती है। उसके दिल में ये ख्याल भी अभरने लगता है कि शायद फबीहा इतनी बुरी नहीं जितना वो समझ बैठी थी, बल्कि हालात ने दोनों को एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा किया था। कुछ उर्सा गुजरने के बाद इस घर में एक और लम्हा आता है जब महक के तभी मायने की रिपोर्ट आती है। सबकी नजरें आसिफ साहब पर जमी होती हैं, जो कांपते हाथों से रिपोर्ट पढ़ते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए वो बताते हैं कि फिया अलहाल खतरे की कोई बात नहीं, मगर जहनी दबाव महक और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदा हो सकता है। ये बात सुनकर सबके दिल में एक साथ खौफ और सुकून उतरता है। खौफ इस बात का कि एक और गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है, और सुकून इस एहसास का कि अभी अल्लाह ने मेहनत दे रखी है। उसी दिन आसिफ साहब सबको एक बार फिर बैठाते हैं, मगर इस बार लहजा सख्त नहीं बल्कि टूटा हुआ होता है। वो कहते हैं कि अब फैसले दिल से नहीं अक्ल से करने होंगे। वो वाज़ेह कर देते हैं कि इस घर में अब किसी की तज़लील बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो बहू हो या बेटा। इनके अल्फाज में ऐसी संजीदगी होती है कि सबके सर खुद बेखुद झुक जाते हैं। आर्यान पहली बार खुलकर फबीहा की तरफ देखता है और आहिस्ता से कहता है कि अगर इससे किसी बात में ज्यादती हुई हो तो वो माजरत ख्वाह है। ये जुमला अगरचा छोटा होता है, मगर फबीहा के लिए किसी बड़े बोझ के उतरने जैसा होता है। फबीहा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि शुक्र के होते हैं। वो कहती है कि उससे भी बहुत सी गलतियां हुई, और अगर उसने वक्त पर सब्र किया होता तो शायद हालात यहाँ तक न पहुँचते। महक ये सब सुनते हुए खामोश रहती है, फिर धीरे से कहती है कि वो भी अपनी तलखी पर शर्मंदा है। उस एक लम्हे में 3 दिलों के बोझ कुछ हल्के हो जाते हैं। अगरचा माजी मुकम्मल तौर पर मिटता नहीं। आर्यान और अलमीर के दरमियान भी आहिस्ता आहिस्ता बातचीत शुरू हो जाती है। शुरू में ये गुफ्तगू सिर्फ ज़रूरत तक महदूद होती है, मगर फिर एक दिन आसिफ साहिब जानबूझकर दोनों को साथ बाजार भेज देते हैं। रास्ते में खामोशी रहती है, मगर वापस आते हुए पुरानी यादों का जिक्र छुड़ जाता है। बचपन के वो दिन याद आते हैं जब दोनों एक दूसरे के बगैर एक कदम भी नहीं चलते थे। ये यादें दिलों में जमे गुस्से को नर्म करने लगती हैं, और दोनों को एहसास होता है कि इख्तिलाफात कितने ही बड़े क्यों न हों, भाई होने का रिश्ता उन सबसे बड़ा है। घर की फ़ज़ा अब पहले से मुख्तलिफ होने लगती है। फबीहा और महक के दरमियान रस्मी गुफ्तगू कभी कभार मुस्कुराहट में बदलने लगती है। छोटी छोटी बातों पर शक्र अदा किया जाता है, और हर कोई जानता है कि ये सब आसानी से नहीं मिला। आसिफ साहिब अक्सर रात को अकेले बैठकर ये सोचते हैं कि शायद ये सब आजमाइशें उस लिए आए थीं ताकि इस खानदान को उसकी असल कदर का एहसास हो सके। यूं ये कहानी अब सिर्फ झगड़े और नफरत की नहीं रहती, बल्कि सीखने, झुकने और एक दूसरे को कबूल करने की कहानी बनने लगती है। जख्म अभी पूरी तरह भरे नहीं, मगर इन पर मरहम रख दिया गया है। आने वाला वक्त ही फैसला करेगा कि ये मरहम मुस्तकिल शफा बन पाता है या नहीं, मगर फ़िलहाल इस घर में ये उम्मीद ज़रूर जिंदा हो चुकी होती है कि टूटे हुए रिश्ते अगर नीयत सच्ची हो तो दोबारा जुड़ भी सकते हैं। चंद हफ्ते बाद घर में एक और नाजुक मरहला आता है जब महक की सेहत में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी महसूस होने लगती है, मगर अब भी हर लम्हा खौफ और महतात सोच के साथ गुजरता है। फबीहा और महक के दरमियान ताल्लुकात में अब बिल्कुल भी पुरानी दुश्मनी नहीं रहती, मगर मुकम्मल भरोसा बेहाल होने में वक्त लगता है। फबीहा हर काम में महक की मदद करने लगती है। छोटे छोटे काम जैसे दवा देना, खाना खुलाना या पानी लाना, वो सब दिल से करती है। इस दौरान उसके दिल में बार बार चंद महीने मजीद गुजरने के बाद इस घर की फ़ज़ा में एक गहरी सुकून और बर्दाश्त की कैफियत पैदा हो जाती है, मगर ये सुकून मुकम्मल तौर पर नहीं बल्कि मितात और नाजुक होता है। महक अब पहले की तरह कमज़ोर या खौफजदा नहीं रहती, बल्कि उसके दिल में एक नए हौसले और तहम्मुल का एहसास जाग उठता है। वो छोटे छोटे कामों में फबीहा के साथ ताउन करती है, दवा देने, खाना पकाने या रोज़मर्रा की दिगर ज़रूरतों में हाथ बढ़ाती है, और उसके हर अमल में नरमी और शुक्रगुजारी झलकती है। महक के रवैये में अब वो संजीदगी और महतात इर्तिमाद मौजूद होता है जो पहले कहीं नहीं दिखाई देती थी। फबीहा भी दिल में खुद को बदलने पर मजबूर महसूस करती है। वो जानती है कि एक लम्हे का गुस्सा
दोबारा महक या बच्चे के लिए नुकसान का बास बन सकता है। इसलिए हर अमल और बात में एहतियात अख्तियार करती है। दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में वो महक के पास जाती है, उसके लिए खाना और पानी लाती है, दवा देने में मदद करती है और छोटे छोटे काम ऐसे करती है जो महक और बच्चे के लिए जिंदगी को आसान बनाए। दिल ही दिल में वो महसूस करती है कि मादे की तल्ख यादें अब उसके लिए सबक बन चुकी हैं और उसे सिखा रही हैं कि सब्र, तहम्मुल और ताउन के बगैर घर में अमन कायम नहीं रह सकता। आर्यान और अलमीर के दरमियान भी पहले जैसी कशीदगी खत्म होने लगती है। दोनों भाई अब एक दूसरे के साथ तहम्मुल और समझदारी के साथ वक्त गुजारते हैं। बातचीत में एहतराम शामिल होता है और पुरानी कदूरतों को दिल में जगह नहीं दी जाती। आसिफ साहिबा बार बार उन्हें नसीहत करते हैं कि भाई होने का रिश्ता सबसे कीमती है और उसे बचाने के लिए गुरूर और अना को पीछे रखना ज़रूरी है। आर्यान और अलमीर दोनों दिल ही दिल में समझते हैं कि उनके झगड़ों ने पहले घर के माहौल को किस हद तक बिगाड़ दिया था और अब वो अपने रवैयों में बेहतरी लाने पर मजबूर हैं। घर के दीगर अफराद भी उस सुकून और नरमी की फ़ज़ा को महसूस करते हैं। अब लोग एक दूसरे की बात गौर से सुनते हैं, छोटी छोटी बातों पर रंजिश पैदा नहीं करते और मसाइल को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आसिफ साहब ये सब खामोशी से देखकर शुक्र अदा करते हैं, मगर वो जानते हैं कि असल इम्तिहान अभी बाकी है, क्योंकि ज़िंदगी के मामूली मसाइल और गैर मुतवक्का हालात तो दोबारा कशीदगी पैदा कर सकते हैं। यूं ये घर नफरत, तलखी और अना से बचकर तहम्मुल, सब्र और एहतराम की फ़ज़ा में ढलने लगता है। हर दिल में ये शऊर पैदा हो चुका है कि रिश्तों की कद्र करना और एक दूसरे के लिए सहारा बनना ही सब से बड़ी ताकत है। ये लम्हा उस खानदान के लिए न सिर्फ नया आगाज़ है बल्कि आने वाले दिनों के लिए मजबूत बुनियाद भी फराहम करता है, जो उन्हें मुत्तहद और मोहब्बत के साथ जीने का सबक सिखाता है। घरेलू हालात में आहिस्ता आहिस्ता सुकून और तहम्मुल की फ़ज़ा कायम होने के बाद इस घर के हर फर्द के रवैये में एक गहरी तब्दीली महसूस की जाने लगी। मैं कब पहले की तरह खौफजदा या गैर महफूज महसूस नहीं करती, बल्कि उसके दिल में सब्र और तहम्मुल पैदा हो चुका होता है। वो हर छोटे बड़े काम में फबीहा की मदद करने लगती है, चाहे वो दवा देना हो, खाना तैयार करना हो या घर की छोटी मोटी ज़रूरियात पूरी करना हो। इस दौरान महक के रवैये में नरमी और शक्र गुजारी झलकती है और वो दिल ही दिल में फबीहा के लिए एहतराम महसूस करती है। अब वो हर बात पर मोहतात होती है ताकि किसी भी लम्हे का गुस्सा दोबारा तलखी का सबब न बने। फबीहा भी दिल ही दिल में अपनी तब्दीली महसूस करती है। वो जानती है कि एक लम्हे की ज़द या अन्ना से महक या बच्चे के लिए नुकसान हो सकता। वक्त के साथ इस घर में मज़ीद नरमी, सुकून और तहम्मुल की फ़ज़ा कायम होने लगती है, मगर ये तब्दीली मुकम्मल तौर पर नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता और महतात अंदाज में रोनमा होती है। मैं कब पहले जैसी खौफजदा और कमज़ोर महसूस नहीं करती, बल्कि उसके दिल में हौसला, सब्र और तहम्मुल पैदा हो चुका होता है। वो छोटे छोटे कामों में फबीहा की मदद करने लगती है, दवा देने, खाना तैयार करने और रोज़मर्रा की दीगर ज़रूरतों में हाथ बटाती है। हर अमल में उसके दिल की नरमी और शक्रगुजारी झलकती है और वो दिल ही दिल में फबीहा के लिए एहतराम और शफ़क़त महसूस करती है। हर लम्हा उसके लिए एक सबक बन चुका होता है कि गुस्सा और तलखी दोबारा इस घर में ख़तरा पैदा कर सकती है, इसीलिए वो हर अमल और बात में महतात रहती है। फबीहा भी अब खुद को बदलने पर मजबूर महसूस करती है। वो जानती है कि एक लम्हे की ज़द या गुरूर से महक या बच्चे के लिए नुकसान हो सकता है, इसीलिए वो हर बात और हर काम में नरमी, सब्र और समझदारी दिखाती है। दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में वो महक के कमरे में जाकर उसके लिए पानी लाती है, खाना देती है, दवा के वक्त साथ रहती है और छोटे छोटे काम करती है ताकि महक और बच्चे की ज़िंदगी आसान और महफूज हो। दिल ही दिल में वो बार बार सोचती है कि माज़ी की तल्ख़ यादें सबक बन चुकी हैं और दोबारा इन पर अमल करना ख़तरनाक हो सकता है। इस शोर की बदौलत इसका रवैया नरम, महबत भरा और ज़िम्मेदाराना हो गया है। आर्यान और अलमीर के दरमियान भी कशीदगी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती है। दोनों भाई अब एक दूसरे के करीब बैठने, बात करने और छोटी छोटी बातों पर रंजिश पैदा न करने की कोशिश करने लगते हैं। आसिफ साहब बार बार इन्हें नसीहत करते हैं कि भाई होने के नाते एक दूसरे का एहतराम
करना और रिश्ते को मजबूत रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आर्यान और अलमीर दिल में सोचते हैं कि उनके झगड़ों ने पहले घर के माहौल को किस हद तक बिगाड़ दिया था और अब वो अपनी गलतियों को सुधारने और रिश्तों को बचाने के लिए तैयार हैं। घर के दीगर अफराद भी उस तब्दीली और नरमी को महसूस करते हैं। अब लोग एक दूसरे की बात गौर से सुनते हैं, मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं और छोटी छोटी बातों पर रंजिश या तनकीद पैदा नहीं करते। आसिफ साहब ये सब खामोशी से देखकर शुक्र अदा करते हैं, मगर वो जानते हैं कि असल इम्तिहान अभी बाकी है, क्योंकि ज़िंदगी के मामूली मसाइल और गैर मुतवक्का हालात तो दोबारा कशीदगी पैदा कर सकते हैं। यूं इस घर में नफरत, तलखी और अना की जगह तहम्मुल, सब्र, मोहब्बत और एहतराम ने ले ली है। हर दिल में ये शऊर जाग गया है कि रिश्तों की कदर करना, एक दूसरे के लिए सहारा बनना और सब्र के साथ ताल्लुकात निभाना ही सबसे बड़ी ताकत है। ये लम्हा उस खानदान के लिए न सिर्फ नया आगाज है, बल्कि आने वाले दिनों में उन्हें मुत्तहद, मजबूत और मोहब्बत के साथ जीने के काबिल बनाने वाला सबक भी फराहम करता है। इस घर में वक्त के साथ जो तब्दीली आ रही है वो न सिर्फ ज़ाहरी बल्कि अंदरूनी भी है। महक की सेहत बेहतर होने के साथ साथ इसके रवैये में एतमाद और तहम्मुल भी आ गया है। वो अब पहले की तरह खौफजदा या चढ़चढ़ाई हुई नहीं रहती, बल्कि हर काम में ज़िम्मेदारी और नरमी दिखाती है। वो फबीहा के साथ ताउन में कोई कसर नहीं छोड़ती। दवा देने से लेकर खाने पीने का इंतज़ाम करने तक हर छोटे बड़े काम में अपनी मदद शामिल करती है। दिल ही दिल में वो महसूस करती है कि गुस्सा और तलखी दोबारा ना पैदा हो, क्योंकि उसका हर लम्हा अब सबक से भरा हुआ है। फबीहा भी अपनी गलतियों का इत्तराफ़ करके दिल में नरमी पैदा करती है। वक्त गुजरने के साथ घर में जो सुकून और नरमी पैदा हुई थी वो मज़ीद गहरी और मजबूत होने लगी है। महक अब पहले की तरह खौफजदा या गैर महफूज महसूस नहीं करती, बल्कि उसके दिल में सब्र, तहम्मुल और समझदारी पैदा हो गई है। वो हर छोटे बड़े काम में फबीहा की मदद करती है, चाहे दवा देना हो, खाना पीना हो या रोज़मर्रा की छोटी ज़रूरतें पूरी करना हो। उसके हर अमल में नरमी, मोहब्बत और शुक्रगुजारी झलकती है और वो दिल ही दिल में फबीहा के लिए एहतराम महसूस करती है। अब वो हर बात पर मोहतात रहती है ताकि मादी की तलखी या एक लम्हे की ज़द दोबारा घर में ख़तरा पैदा न करे। फबीहा भी दिल ही दिल में अपने रवैये में तब्दीली ला रही होती है। वो जानती है कि अगर वो दोबारा गुस्सा या उना का मुजाहरा करे तो महक और बच्चे के लिए नुकसानदा साबित हो सकता है। उसी लिए वो हर बात और हर अमल में सब्र, नरमी और मोहब्बत इख्तियार करती है। वो दिन के मुख्तलिफ औक़ात में महक के पास जाकर उसका ख्याल रखती है, उसके लिए खाना और पानी लाती है, दुआ के वक्त उसके साथ रहती है और छोटे छोटे काम करती है ताकि महक और बच्चे की ज़िंदगी आसान और महफूज हो। इस शूर की बदौलत फबीहा के दिल में शफ़क़त और एहतराम पैदा हो गया है और अब वो मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदारी के साथ हर कदम उठाती है। आर्यान और अलमेर के दरमियान भी खामोशी और फासले की जगह आहिस्ता आहिस्ता कुर्बत और समझौते ने ले ली है। दोनों भाई अब एक दूसरे के करीब बैठते हैं, बात करते हैं और छोटी छोटी बातों पर रंजिश नहीं रखते। आसिफ साहिब बार बार नसीहत करते हैं कि भाई होने के नाते एक दूसरे का एहतराम और रिश्तों की कदर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आर्यन और अलमीर दिल ही दिल में समझते हैं कि उनके पिछले झगड़ों ने घर के माहौल को किस हद तक बिगाड़ दिया था और अब वो अपने रवैयों में तब्दीली लाने और रिश्तों को बचाने के लिए तैयार हैं। घर के दीगर अफराद भी उस नई फ़ज़ा को महसूस करते हैं। सब लोग एक दूसरे की बात गौर से सुनते हैं, मसाइल को सब्र और तहम्मुल के साथ हल करने की कोशिश करते हैं और छोटी छोटी बातों पर नाराज़गी या तलखी ज़ाहिर नहीं करते। आसिफ साहिब ये सब खामोशी से देखकर खुश और शुक्रगुजार होते हैं, मगर वो जानते हैं कि असल इम्तिहान अभी बाकी है, क्योंकि ज़िंदगी के मामूली मसाइल और गैर मुतवक्का हालात तो दोबारा कशीदगी पैदा कर सकते हैं। यूं इस घर में मोहब्बत, सब्र, तहम्मुल और एहतराम की फ़ज़ा कायम हो गई है। हर दिल में ये शऊर जाग गया है कि रिश्तों की कदर करना और एक दूसरे के लिए सहारा बनना सबसे बड़ी ताकत है। ये लम्हा उस खानदान के लिए न सिर्फ नया आगाज है, बल्कि आने वाले दिनों में उन्हें मुत्तहद, मजबूत और मोहब्बत के साथ जीने के काबिल बनाने वाला सबक फराहम करता है। अगर आप चाहें तो मैं उस कहानी
को मजीद आगे बढ़ाते हुए महक और फबीहा के ताल्लुकात के जज्बाती पेचीदा मराहिल आर्यान और अलमीर के दरमियान बढ़ती क़रबत या मुमकिना ने तनाज़ात भी तफसील से लिख दूँ ताकि ये मुकम्मल ड्रामाई सिलसिला बन जाए। क्या मैं ये अगला हिस्सा लिख दूँ? वक्त के साथ इस घर की फ़ज़ा में जो सुकून और नरमी पैदा हुई थी वो मज़ीद गहरी और मजबूत हो गई है। महक अब पहले की तरह खौफसदाम या गैर महफूज महसूस नहीं करती, बल्कि उसके दिल में सब्र, तहम्मुल और दाखिली क़व्वत पैदा हो गई है। वो रोज़ाना के छोटे बड़े कामों में फबीहा की मदद करती है, चाहे दवा देना हो, खाना तैयार करना हो या बच्चे की देखभाल करना हो। इसके हर अमल में मोहब्बत, नरमी और शुक्रगुजारी झलकती है और वो दिल ही दिल में फबीहा के लिए एहतराम और कदर महसूस करती है। अब वो हर बात पर महतात। अब घर में जो सुकून, नरमी और बर्दाश्त पैदा हुई है वो मज़ीद गहराई इख्तियार करने लगी है और हर फर्द अपने रवैये में ज़्यादा महतात और समझदार हो गया है। महक अब पहले की तरह खौफजदा या चढ़चढ़ाई हुई नहीं रहती, बल्कि उसके दिल में एतमाद, सब्र और तहम्मुल पैदा हो चुका है। वो रोज़मर्रा के छोटे बड़े कामों में फबीहा की मदद करती है, दवा देने, खाने पीने और बच्चे की देखभाल से लेकर घर के दीगर उमूर में भी अपना हिस्सा डालती है। हर अमल में उसके दिल की नरमी और शुक्रगुजारी झलकती है और वो दिल ही दिल में फबीहा के लिए एहतराम और कदर महसूस करती है। अब वो हर लम्हे महतात रहती है ताकि एक लम्हे का गुस्सा या ज़द दोबारा घर में तलखी पैदा ना करे। फबीहा भी अपनी तब्दीली के अमल में पूरी संजीदगी से काम करती है। वो जानती है कि अगर वो दोबारा गुस्सा या उना का मुजाहरा करे तो महक और बच्चे के लिए नुकसानदा हो सकता है। उसी लिए वो हर अमल और बात में सब्र, नरमी और मोहब्बत इख्तियार करती है। वो दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में महक के पास जाती है, उसके लिए खाना और पानी लाती है, दवा के वक्त उसके साथ रहती है और छोटे छोटे काम करती है ताकि महक और बच्चे की ज़िंदगी महफूज और आसान हो। इस शोर ने फबीहा के दिल में शफ़क़त और एहतराम पैदा कर दिया है और अब वो मुकम्मल ज़िम्मेदारी और नरमी के साथ हर कदम उठाती है। आर्यान और अलमेर के दरमियान भी ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। दोनों भाई अब एक दूसरे के करीब बैठते हैं, बात करते हैं और छोटी छोटी रंजिशों को दिल में नहीं रखते। आसिफ साहब बार बार इन्हें नसीहत करते हैं कि भाई होने के नाते एक दूसरे का एहतराम और रिश्तों की कदर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आर्यन और अलमीर दिल ही दिल में समझते हैं कि उनके पिछले झगड़ों ने घर के माहौल को किस हद तक बिगाड़ दिया था और अब वो अपने रवैयों में तब्दीली लाकर रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं। घर के दीगर अफराद भी उस नई फ़ज़ा को महसूस करते हैं। अब लोग एक दूसरे की बात गौर से सुनते हैं, मसाइल को सब्र और